जा रहे हैं. So good morning to all of you. As per our syllabus, you know, in unit 1 yesterday we have discussed the theory of probability and I have sent the notes, right? So you go through that. If you face some problem, then I will send you more notes for that, right? You know, probability rules में Bayes theorem है. Today I will not discuss on Bayes theorem. Today I will discuss on you know, probability distributions, namely binomial distribution, Poisson distribution, and normal distribution. These three distributions are in your syllabus. Actually it is for you know, management students syllabus. Actually और भी distributions होते हैं, but for management students only these three distributions are required. अगर आप इनको यहाँ सीख लेंगे, when you will do the MBA, same distribution will be, you know, study in MBA also. जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये MBA में भी आप सेम चीजें पढ़ेंगे. अगर आपको ये चीज समझ आ गई अभी से, तो it will be beneficial for you if you will do MBA. अगर नहीं करते हैं तो no problem, but these distributions will be applied in your real life situations. So we are studying these binomial distributions, Poisson distributions, and normal distribution. These distributions are related to, you know, management students. So we are studying here. So first of all, in today class, I will try to finish all these three distributions if possible. So now we start with binomial distribution. I will tell you what is binomial distribution. What is binomial distributions? Actually, these three distributions are called univariate probability distributions. But it is not necessary you should know that why this called univariate or multivariate, but you should know only what is binomial distribution, or what is Poisson distribution, or what is normal distribution. Actually, this binomial distribution is also known as Bernoulli distribution. This distribution is also known as Bernoulli, B-E-R-N-O-U, Bernoulli distribution. This distribution was, invented by Swiss mathematician James Bernoulli in 1654. 1654 ये डेट ऑफ बर्थ है उनका 1705. ये मैथमेटिशियन का डेट ऑफ बर्थ है. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं कि जेम्स बर्नौली ने इसको डिस्कवर किया था इन 1700 में, और ये पब्लिश्ड हुआ 1713 में, or 8 years after his death this distribution can be used after the following conditions. So when we will how I can recognize that in any particular situation here we will apply the binomial distribution or not. So these are some conditions. From that I will recognize that here we will use the, you know, binomial distribution. First condition is that the random experiment is performed repeatedly a finite and fixed number of times. In other words, the number of trials is finite and fixed. हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो number of trials हैं, number of trials is finite or fixed, right? Number of trials is finite or fixed. It is the first condition.
And the second condition is the outcomes of the random experiment or a trial in the dichotomous classification of events. In other words, the outcomes of each trial may be classified into two mutually disjoint categories called success and failure. And the third thing is that all the trials are independent. The results of any trial is not affected in any way by the preceding trials and does not affect the result of succeeding trials. You know, someone have not done mute itself. Farhan Ahmad, please mute yourself. Mr. Farhan, mute yourself. So I have told you there are 4 conditions. It is condition 1 and condition 2. I have told you condition 3 and condition 4. You know, in condition 2, I have told you that what? Ki they will be mutually exclusive. Mutually exclusive means हमने आपको yesterday I have told you mutually exclusive. 2 events will be mutually exclusive. ये पहली दूसरी शर्त है कि both the events will be mutually exclusive means disjoint होनी चाहिए. And third है all trials are independent. All the trials are independent. एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. जस्ट लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल. इंडिपेंडेंट होना चाहिए और हम उसको इसी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ही हम इसको डिनोट करते हैं. या तो यू नो सक्सेस होगा या फेलियर होगा. यू नो दैट बोथ आर डिफरेंट थिंग. अगर कोई बच्चा एग्जाम देगा तो या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा. कुछ भी ले लो, कोई भी काम हो, या तो स्टूडेंट या एनी पर्सन विल बी सक्सेस और ए फेलियर. बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. अगर सक्सेस होगा तो फेलियर नहीं होगा, फेलियर होगा तो सक्सेस नहीं होगा. बोथ आर म्यूचुअली एंड डिसजॉइंट इवेंट्स. फरहान अहमद, मैं आपको मीटिंग से बाहर कर दूंगा. प्लीज बी लिसन केयरफुली. आप म्यूट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं. सर समझ ही नहीं आ रहा जूम में कैसे क्या होता है. नहीं समझ आ रहा है तो समझ लो किसी से, फिर ज्वाइन कर लेना. ठीक है बेटा, अपने आप को पहले म्यूट करो. इन औरों को समझ लो कैसे म्यूट करते हैं. वहां पे म्यूट का ऑप्शन दिया होगा, म्यूट करो उसको. बटन से क्लिक करो, जैसे सबके में ये रेड रेड आ रहा है ऐसे आएगा. आपने कल क्लास अटेंड की थी? यस्टरडे यू वर प्रेजेंट. मेरी क्लास इसी पर होगी, जूम पर. मैं गूगल मीट पे नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर है, लिखना पड़ता है. है ये. हाँ जी, क्या कह रहे हैं आशिया जी? सॉरी सर. I am not giving only the lecture on, you know, PowerPoint presentation. I am written on the whiteboard. For this class, whiteboard is required, so I cannot take the class on Google Meet. On Google Meet, only the PPT was present. All the teachers are taking your class by presenting, you know, PPT, PowerPoint presentation देते हैं और उसी से explain करते हैं. But you know, this subject is in a mathematical based. It is in a purely statistics. Here the problem will be discussed. So here I cannot write this PPT बना ली और explain कर दिया. और हर बार मैं हर किसी को अलग अलग example देता हूँ. It is not mandatory कि इस बार आपको ये बताया है, example दिया है तो अगली बार किसी को यही दूंगा. Every time I have changed the example, so I have not, you know, teaching on PowerPoint presentation. So all of you understood this. It is not a, you know, theoretical lecture.
इसमें पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं। अगर आपने पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन गलत लिख दी, इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसकी जगह आपने कुछ और लिख दिया, तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। समझ रहे हैं? तो इसलिए तो चौथा है, हम सक्सेस को P से डिनोट करते हैं और फेलियर को 1 माइनस P से डिनोट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P लिखा जाता है। P इज डिनोटेड फॉर सक्सेस एंड Q इज डिनोटेड फॉर फेलियर, एंड यू नो 1 माइनस P मीन्स Q। अगर और दोनों का सम क्या होगा, P प्लस Q विल बी 1, मतलब सक्सेस और फेलियर दोनों की जोड़ दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करने का तरीका है NCR, P टू पावर R, Q टू पावर N माइनस R, और जो हमारा R है वो लाइज करेगा 0, 1 अप टू n, ये n तक जाएगा। और हम यहां पर डिनोट लिख सकते हैं PR या कैपिटल P x इज इक्वल टू स्मॉल r। ये फार्मूला है, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। इट इज द फार्मूला ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं, if x denotes the number of the successes in n trials satisfying the above conditions, then x is a random variable which can take the values 0, 1 up to n. Since in n trials we may get no success, all failures, 1 success, 2 success and all the n successes. जरूरी नहीं है आप कुछ भी कर रहे हैं, पहली बार सक्सेस हो गए, दूसरी बार फेलियर हो गए, फिर सक्सेस 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 हो गए, फिर फेलियर हो गई, फिर सक्सेस हो गए, फिर फेलियर हो गए, फिर सक्सेस हो गए, फिर फेलियर हो गई। तो इसमें हर बार सिचुएशन चेंज होगी। मान लो सक्सेस हो रहे हो तो P, फेलियर हो रहे हो तो Q, सक्सेस हो रहे हो तो P, फिर सक्सेस हो गए, फिर सक्सेस हो गए, फिर फेलियर हो गए। मान लो कोई भी आप वर्क करते हैं, इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, सपोज यू आर डूइंग एनी बिजनेस, तो क्या होगा, इट इज नॉट मैंडेटरी कि एवरी टाइम यू विल बी सक्सेस, इन सम टाइम यू मे बी फेलियर, राइट। तो क्या होता है, वी विल डिनोट P फॉर सक्सेस, Q फॉर फेलियर। तो रेगुलरली यू बिकेम सक्सेस, तो आई हैव डिनोट P, 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 Q, देन फेलियर फॉर Q, फिर P, फिर P, फिर P। यू सी दैट कि कितने बार इसमें सक्सेस आया। यहीं तक ले लेते हैं, इसको Q लेते हैं और इसको भी Q लेते हैं। यू विल सी दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा P टू पावर 7 आया, और आप देखिए Q टू पावर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, Q टू पावर 5 आया। अब एक चीज नोटिस करो, टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यू नो दैट ये जो 5 लिखा है एक्चुअली ये 12 माइनस 7 है। तो आप फार्मूले में चेक करिए कि क्या लिखा, P टू पावर R। तो हमारा P कितनी बार सक्सेस आया है, 7 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, N माइनस R। टोटल हमने मान लो एक कोई भी वर्क किया, वो हमने 12 बार वर्क किया, 12 बार में हम 7 बार सफल हो गए, और तो कितनी बार असफल हुए, जरा उस्मान सैफी बताएं, हाउ मेनी टाइम्स। सपोज वी सक्सेस इन एनी ट्रायल 7 times, so how many times we will not be success? Tell me, Mr. Usman Safi. Sir, 5 times. Yes, so you know that in the formula
you know, we have taken R is varying from 1 to up to n, means you know, any trial will be in the finite form, means 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1 लाख बार, 2 लाख बार, means this n shows that your number will be infinite, जिसको गिना जा सकता है, right? और आप देखिए P is denoted for success and Q is denoted for failure. So in this example, you see that 7 times a person became success. It means 5 times a person became failure. You know, so how you get this 5 value, you know, formula is here. Please mute your, you know, mute yourself video also. So Q is equal to n minus R, you know, तो you understood that कि अगर R यहाँ पर 7 है तो R हमारा वो Q2 पावर क्या होगा, n minus R. Here n is, you know, 12 times आपने ट्राई किया था इस पिक्चर में, आपने 12 बार टोटल ट्राई किया. There 7 times you became success, it means 5 times you became fail. So they put you know, these trials, I will you know, present you example for that. Then you know, and this thing also you see that here NCR, you know, it is in a combination. Those students which have studied in, you know, 11th or 12th class, they knows that what is the meaning of permutation and combination. Here I am explaining you what is this permutation and combination, you know. So this C is denoted the combination, and how we will find the combination is factorial n upon factorial R and factorial n minus R. It is the formula to find out the NCR. You know that in binomial distribution, you know, when we will try to find the value, we will use the formula NCR P to power R Q to power n minus R. Just I have given you the example. There n is 12, you know, सक्सेस कितनी बार आ रहे हैं, 7 times, तो we will write 12C, तो P to power 7 and Q to power 5, you know. हम हमारी वैल्यू यहाँ ये आ गई और यहाँ पर हम R की जगह पे 7 लिखेंगे. It is the way to get the value of Manish Rajput. Mute yourself first, Mr. Manish Rajput. So in this way I got this value, but you know, हम इस 12C7 की भी वैल्यू निकालेंगे by using this formula. Then that will be the final answer for any, you know, question. Someone is writing voice नहीं आ रहा है. Who said? आवाज आ रही है बच्चों? Hello. Yes, sir. आ रही है. Mr. Manish Rajput, there is a problem in your connection, right? Here voice is clear, all the students are listening my voice, but you are facing problem. It means there is a, you know, laptop or in your mobile there is some problem, right? So I have explained you the binomial distribution. I am taking one example to, you know, solve the value. मैं एक आपको एक एग्जाम्पल भेजता हूं, अभी भेजे तुरंत की अभी समझ नहीं आएगा, फिर आपको बगैर एग्जाम्पल को लिखने में टाइम लगेगा. जस्ट वेट, आई एम सेंडिंग यू द एग्जाम्पल. मैं एक एग्जाम्पल भेज रहा हूं जिस पे डिस्कस करेंगे और हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी क्लियर. Please wait for 2 or 3 minutes.
please see in your mobile. I am sending you the example. We will discuss on that. Please open your WhatsApp and see that example. Read that question. Then I will explain you that example so that you will understood in real life situation how to find out the problem by using the binomial distribution. So Miss Bisma Masoom, please read the question. Please read the question. Other student Manish Rajput, please read the question. Have you received? No. Ajib, Mr. Ajib, have you received the question? Yes, sir. हाँ पढ़ो जरा, Yes, sir. क्वेश्चन क्या आया है आपके पास? सर वो कौन सा दो क्वेश्चन आया है, 14.3 भी है, 14.4 भी है। 14.3 पढ़ो, बिल्कुल सही। 14.3, 4 पूरा नहीं दिया हमने, 14.3 का सोल्यूशन भी दिया है। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन एग्जांपल 14.3 पढ़िए। A merchant file of 20 accounts contain 6 delinquent and 14 non-delinquent accounts, and an auditor randomly selects 5 of these accounts for examination. First is, what is the probability? Yes, sir. हाँ पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप। What is the probability that the auditor finds exactly 2 delinquent accounts? And second is, find the expected number of delinquent accounts in the sample selected. क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया, आप जरा हमें बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया? कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है? कैन यू टेल मी आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन आपको क्या समझ आया एग्जैक्टली? जस्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या पता लगा। अगर नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम, यू कैन से दैट सर पढ़ तो लिया बट आई डू नॉट अंडरस्टूड क्वेश्चन क्या कह रहा है। Yes, sir. मिस्टर प्रथम प्लीज टेल मी, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ आया? कैन यू टेल मी? एनी अदर स्टूडेंट? नो, आई थिंक सबने मोबाइल यूं ओपन किया हुआ है और दे आर जस्ट लिसनिंग दिस। बी केयरफुल, इट इज एन स्टैटिस्टिक्स पेपर, इसमें फेल होने के भी आसार रहते हैं if you do not know how to solve the problem, right? No problem, just I am explaining this, it is the first question, हो सकता है you will not understood that. See, in this question it is written that a merchant's file of 20 accounts contain, एक मर्चेंट तो समझते हो ना, एक व्यापारी की फाइल है, 20 अकाउंट्स हैं जिसमें 6 अपराधी हैं और 14 नॉन अपराधी अकाउंट्स हैं, है ना? An auditor randomly selects 5 of these accounts for examination. इन 20 फाइल में से आप देख रहे हो एक मर्चेंट की टोटल फाइल कितनी है? 20। 6 फाइल कैसी हैं? आपराधिक, मतलब किसी ने उसका पैसा मार लिया, कुछ कर लिया। 14 फाइल कैसी हैं? नॉन डिलिंक्वेंट। अब एक ऑडिटर को बुलाया, उससे बोला कि जरा इन फाइलों का ऑडिट कर दो।
उसने 5 फाइल सेलेक्ट की, उसने को नहीं पता कि कौन सी फाइल इसमें से उठा ली, कौन सी इसमें से उठा ली, क्योंकि उसने रेंडमली सेलेक्ट की है। उसके पास फाइलें रखी थी 20 सीधी एक दूसरे के ऊपर। तो यूं, अब उसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑडिटर फाइंड्स एग्जैक्टली 2 डिलिंक्वेंट अकाउंट। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 फाइलों में से 2 फाइलें ये वाली होंगी, डिलिक्वेंट्स वाली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिलिक्वेंट अकाउंट्स इन द सैंपल सिलेक्टेड। जो सैंपल सिलेक्ट किया है उसमें से डिलिक्वेंट अकाउंट की एक्सपेक्टेड नंबर बताओ। तो ये हमसे 2 सवाल पूछ दिए गए हैं, उनको हम अब सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। तो ये रहा P। P क्या है? प्रोबेबिलिटी। P मीन्स फेलियर और सक्सेस जो लेते हैं, हम यहाँ सक्सेस और फेलियर नहीं ले रहे हैं, P को हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिलिंक्वेंट अकाउंट। प्रोबेबिलिटी, इसको कॉपी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिलिंक्वेंट अकाउंट, ये P लिया। जैसे हमने अभी पीछे अकाउंट में एन यहाँ आएगा, डिलिंक्वेंट अकाउंट ये लिया। तो क्या है, टोटल फाइलें कितनी है 20, डिलिंक्वेंट्स फाइलें कितनी है 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख लेते हैं और जो फेवरेबल ट्रायल्स होते हैं वो ऊपर लिखते हैं। यस्टरडे आई हैव टॉट यू हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। हमने 3 तरीके की बात की थी और उसमें एक पहला वाला जो अप्रोच था उस वाले में ऐसे निकालना सिखाया। तो ये 6/20 योर वैल्यू विल बी 0.3। आप 6 में 20 से डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। फिर हमने बोला Q जो फेलियर होता है, आपको बताया है कि Q क्या होता है 1 - P होता है। तो इट इज 1 - 0.3, यू विल गेट द वैल्यू 0.7। ठीक है, इट इज क्लियर नाउ। हमारा अब हम फार्मूला लगा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम कि इसमें देखो पता चल गया कि ये सक्सेस और फेलियर की बात कर रहा है। इट मींस हियर वी विल अप्लाई द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने यहां पर लिख दिया कि अब हम फार्मूला NCR P⁻R Q⁻N-R, ये फार्मूला लगेगा। अब यहां पर देखो पार्ट, अब इस क्वेश्चन में n कितना होगा? एनी स्टूडेंट कैन टेल मी? आपके सामने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख के भी बता सकते हैं, लेकिन मैं पूछ दूंगा क्यों है बस। इसमें NCR P⁻R Q⁻N-R लिखा। प्रोबेबिलिटी दैट ऑडिटर फाइंड्स R delinquent accounts in a random choice of N is equal to 5 accounts। तो टोटल क्वेश्चन में क्या बोला था आपको? ऑडिटर ने 5 फाइलें सिलेक्ट की थी, उसको 2 फाइल वैसी लेनी है। तो क्या हो गया? पार्ट 1 N5 है, 5 फाइलें उसने ली और उसमें से उसको 2 फाइलें लेनी थी, तो 0.3 P आया हुआ है। R आपका 2 है, Q आपका 0.7 है और N-R क्या होगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। और ये 5C2 हमने बताया आपको, ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 - 2 होगा। और ये वाली वैल्यू सेम हम लिख लेंगे, 0.3 का होल स्क्वायर और
0.7 का होल्ड क्यूब। यू सी दैट √5 है, अब ये सॉरी अंडर ये फैक्टोरियल 5 है, तो इसको हम ओपन करेंगे। एक्चुअली नीचे फैक्टोरियल 5 में से 2 जाएगा तो फैक्टोरियल 3 आएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, फैक्टोरियल n कैसे खुलता है, प्लीज राइट डाउन दिस। ये नहीं आएगा n और n-1 पे छोड़ना है तो n के बाद n निकाल लो, n-1 पे फैक्टोरियल 1 छोड़ देंगे। अगर हमने यूं करना है n लेना है फिर n-1 लेना है तो एक एक करके कम होता जाता है, n-2 तो ये n-3 पर फैक्टोरियल रुक जाएगा। तो ये आप देख लो, आई हैव रिटन हाउ टू ओपन द फैक्टोरियल। हियर 5 है तो 5 बाहर हो गया, उससे एक नंबर 4 है वो ये आ गया। तो अब हमारा फैक्टोरियल 3 वी हैव रिटन हियर। फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 into 1, यहीं पे फिनिश कर देंगे। और ये फैक्टोरियल 3, 5 में से 2 आ गया 3, तो ये इससे कट गया। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमने यहाँ लिख लेनी है, इन दोनों को मैंने ये डैश मारा, मींस ये वैल्यू हमने ऊपर वाली लिखी है। और ये 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 5 2 जा 10 आ जाएगी वैल्यू, इसकी 10 वैल्यू आएगी। और इनटू 0.3 का होल स्क्वायर है तो 0.3 इंटू 0.3 2 बार होगा, और 0.7 को we will multiply it by 3 times 0.7। you can ask to the Dr. Jamshed sir, जानते हैं आप लोग उनको? Actually in BBA and MBA I think calculator is allowed, you can confirm with Dr. Jamshed sir. So you can do the multiplication and any other things by using the calculator, but ये factorial निकालना आना चाहिए। If you will not be able to find out the factorial, you cannot solve this question in the examination. So we have solved the part 1 here. Now in part 2 you see question says find the expected number of delinquent accounts in the sample selected। तो इसमें n5 थे, तो delinquent number expected number of है, तो इसकी मीन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको मीन नहीं बताया कि कितना होता है, तो मीन आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो np होता है मीन। तो हमने इस दूसरे वाले में जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है वो np वैल्यू निकाल देनी है। अब आपको पता है n कितना है, यहाँ पर n5 है 5 और p 0.3 है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे